It's 93.5 Red FM पर मैं हूँ आकृति एंड दिस इज DTRP शो द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट शो जहाँ पर आपके टेलीविजन के फेवरेट स्टार्स मेरे साथ होते हैं. इट्स नॉट एन इंटरव्यू आई विल कॉल इट अ कॉन्वर्सेशन बिकॉज दैट्स हाउ इट इज. आप क्लोज एंड पर्सनल अ लिटिल मोर देन एवर बिफोर. बिल्कुल कोशिश रहती है सो दैट जिनको आप इतना सारा प्यार करते हैं, इतना सारा एडमायर करते हैं, उनकी जिंदगी में थोड़ा सा ज्यादा जान सके एंड इफ पॉसिबल उनकी जिंदगी में से कुछ चीजें अगर उठाकर अपनी लाइफ में कनेक्ट करके उसे यूज में ला सके. नथिंग लाइक इट. और इस समय सुबह सुबह की मेरी फर्स्ट कॉन्वर्सेशन ऑफ द डे व्हाइल ही इज इन हिज कार. You will be thinking ऐसे कैसे मुझे पता है. And I'm at my home. We are going to have this conversation with none other than this hunk who has been entertaining us on television for the longest. बहुत बहुत इंटरेस्टिंग चीजें करते हुए बहुत टाइम से पर्दे पे और बहुत टाइम से हमारी जिंदगियों का एक हिस्सा बना हुआ है. One and only Mohit Sehgal finally on a massive public demand. Welcome to. Thank you so much, Akriti. Thank you so much. We got a lot of DMs. We were anyway at it, but your fan clubs and your people were next level. I want to thank everyone for demanding this because I would love to do this as well. And I would love to chat with them and talk to them, hear them, have a conversation with everyone. But unfortunately, it's not possible with everyone. So through you, I can speak to everyone. Fantastic. Though I'm going to get to hear a lot after this podcast is up, they'll be like, अरे हमसे questions तो पूछ लेते, हमारा कुछ तो पूछ लेते. But यहाँ तो entry मारने नहीं दूंगी, यहाँ तो मैं और आप. Okay. Right. Okay, Mohit, you are from Delhi, ठीक है? Yes. सबसे पहले वहाँ पे where did you stay? Where were you school and college? Were you the star kid? How was your दिल्ली का जीवन? दिल्ली का जीवन बिल्कुल दिल्ली की ही तरह था. I used to live in North Delhi. Still my parents are there. And मेरा स्कूल बहुत पास में था मेरे घर के. And बिल्कुल सादा जीव. ऐसा नहीं था कि I was a star kid and all that. ऐसा नहीं था. But I was a notorious kid, I guess. I would say. And पढ़ाई में मुझे इतना ज्यादा शौक नहीं था. But अगर मैं लास्ट के डेज में कुछ पढ़ लेता था तो ठीक ठाक नंबर ले आता था और पास हो जाता था. Yeah, so from there, I always, from my childhood, I always wanted to be an actor. I like that one. Thank you for saying that. Yeah, always. I always wanted to be an actor. But then also मेरे दिमाग में एक और वो था कि मुझे, because my friend had a lot of restaurants and I used to see the life and, हम उसके घर जाते थे और वहाँ का खाना खाते थे तो बहुत मजा आता था. तो मुझे लगता था कि यार क्यों ना अपना रेस्टोरेंट हो, कितना मजा आएगा. You know how kids think and all that. तो कभी भी कुछ भी खा सकते हो और इतना yummy फूड मिलेगा तो you should have your restaurant also. तो मेरे दिमाग में एक वो भी था कि मुझे अपना रेस्टोरेंट खोलना है. तो I was fluctuating between these two things कि मुझे क्या करूँ, मैं एक्टर बनूं या रेस्टोरेंट खोलूं. तो मैंने अपने डैड को बोला, डैड I want to go to London to study hotel management because my friend was going after schooling, after 12th standard. He said नहीं जा सकते because I was the only kid and my sister is there but I was the only kid after my sister got married. So he said, no, you have to handle the business and how emotional he get. Emotionally, he was very attached to me. So he thought once I go, then I'll not come back. I'll always stay there. So he said, no, you can't go there. So I said, please. So he didn't let me go. So then I switched to acting. I said, okay, I want to act also. Yeah. So I said, नहीं अब मुझे acting करना है. तो he said कि ठीक है, whatever you want to do, you stay in Delhi and do everything. So I started doing it at least. I started learning and I joined Barry John over there. When did you start? मतलब स्कूल में ही कर दिया था या फिर कॉलेज का वेट किया? स्कूल में तो I was a very shy kid. मतलब स्टेज पे जाने में मुझे बहुत डर लगता था. स्टेज पे खड़े होने में my legs used to shiver and all that. तो मैं तो स्टेज पे खड़ा हो ही नहीं सकता था वहाँ पे. And स्कूल में कभी शुरू नहीं किया. But later on I wanted to do it but I didn't know how to pursue about it. So I just figured out there is a school called Barry John in Delhi and a lot of actors from Shah Rukh to Manoj Bajpayee and so many actors have joined that. So they also learned from Barry John. So I thought this is the right way to go and I joined that. I started learning from there and it took me 3 years to convince my dad कि let me go to Bombay. So on and off I used to come here because my cousin used to stay here. So on and off I used to come here in 5 days, 7 days. I used to go back to Delhi and figure out कि यहाँ पे क्या हो रहा है. But eventually when I came here after 3 years, then I stayed with few of my friends who already came here.
from Delhi to pursue acting. And one of those friends were Kinshuk Mahajan. So I stayed with him and started auditioning and all that. And one fine day, I got clear with one audition, which was for Mile Jab Hum Tum. And I got the show. In 6 months, I got the show because my dad said, you have 6 months in hand. Okay. And if you don't figure out something in 6 months, you have to come back. You're not staying there. हाँ. So 6 महीने क्या मुझे I think 1.5 महीने में मुझे एक शो मिल गया मिले जब हम तुम, and which was the biggest show, my first show, my baby, from where I started, and then it just kept going, yeah. So that's how I started. आपने मेंशन किया कि वो दैट गाय जिसको स्टेज पर जाने में भी डर लगता था, तो स्कूल तक तो Correct. सच कोई एक्शन था नहीं, मतलब इन टर्म्स ऑफ बीइंग दैट गाय जो Not at all. स्टेज पे फुल अटेंशन ले रहा है और यू नो सारा टाइम किसी ना किसी एक्टिविटी में बिजी है. Not at all. नॉट एट ऑल. ओके, तो फ्रॉम Not दिस गाय जिसको स्टेज पे पैर रखने का कॉन्फिडेंस नहीं है मेंटली, मतलब वो एक्टिंग वाली बात मन में कहीं दबी छुपी थी, किसी ने कॉन्फिडेंस बढ़ाया, या फिर ये बात थी यू डिडंट वांटेड टू टेल एनीबडी, मतलब how did this happen from a guy who didn't want to step on a stage to this guy who really wanted to take a call on making acting a full-time career, take With my fears, I always wanted to be an actor because I won't lie. Actually, a lot of people say कि नहीं हमें glam नहीं चाहिए था, fame नहीं, ये सब नहीं. But I honestly say that मुझे सब कुछ चाहिए था. From first day, I used to see actors and then I used to see how famous they are, you know, see the glamorous life and all that. So I got attracted to that, like, you know, got influenced with that, and like I got attracted to that. I used to see कि उनकी life कितनी सही है and all that. And also I wanted to act, like, you know, I like the craft. So, but मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि how should I like fight with my fears? जो मुझे डर है स्टेज पे जाने का, एक्ट करने का, पैर रखने का स्टेज पे, उससे मैं कैसे लड़ूं? And when I joined Barry John, even at Barry John also, you know, we used to have street plays, we used to have like plays where he used to direct and all that. तो वो भी मुझे समझ में नहीं आता था कि जब मैं सेंटर में खड़ा होऊंगा जहाँ पे सर्कल बना हुआ है सब एक्टर्स का एंड सब आर्टिस्ट का, उनके बीच में अगर मैं खड़ा होकर परफॉर्म करूंगा तो मैं कितना डर जाऊंगा. तो I used to think कि this is the way to fight your fears, and I have to break this, and then I fought with that. Like, you know, one fine day I became confident. I started doing it, and I just got it. I think that's what I have learned in my life. You know, you have to fight your fears and you have to just go, just let yourself be and just go with the flow. Even when I started doing this Nach Valliye, when I was, you know, when I started dancing, I didn't know dancing at all. I couldn't shake my leg, nothing at all. मतलब मैं बहुत खराब था dancing में. When they said कि, you know, आप करिए Nach Valliye, and I was really scared, and I told Sanaya, I said I can't do it. I can't make a fool of myself, and because I'm very bad at dancing, I can't do it. So she said that's how you will learn. Like, you know, just step into it, and then, you know, you will keep doing mehnat and you will learn it eventually. And I guess that's what happened. Like, you know, little bit I can dance now. So I think that's how everyone should do it. लोग आपके बारे में कुछ भी सोचे, बट हर किसी का अपने बारे में लेकर भी कुछ सपने, अरमान और परसेप्शन होता है. लाइक, यू नो, इंटरनली यू न्यू कि आपको स्टारडम अट्रैक्ट करता है एंड यू वांट टू बी देयर द वे यू मेंशन्ड. So after you started, you know, fighting your fears and you were there at Barry Jones and you were doing your things, हर किसी का एक breakthrough moment आता जब लगता है, oh God, I'm there, I think I can make it. You know, that can be a little stage performance, that can be Barry Jones का कोई छोटा सा, you know, in-house gig or anything. So what was your breakthrough moment? I'll tell you the stage where, so basically this fear didn't go even till when I reached Bombay also. Like, it didn't go after completing Barry John also. I started becoming a little more confident and I got the craft, like what the craft is. Like, you know, I started learning about the craft. But वो fear जो होता है वो गया नहीं था अभी भी. Like, you know, even at when I joined Mile Jab Hum Tum also, for the first year I was still very scared कि मैं कुछ गलत कर दूंगा, कुछ गलत हो जाएगा. How will people think कि मैं ऐसे हंस रहा हूँ, वैसे रो रहा हूँ, ऐसे एक्ट कर रहा हूँ. What will people think about me? You know, तो वो फर्स्ट ईयर में भी था. वो started going away from the second year. Second year में मैं बिल्कुल, even when if people will see, you know, me acting in that, तो वो कहीं ना कहीं मुझे तो दिखता है, हो सकता है लोगों को ना दिखे, which is a good thing. लोगों को मेरा फर्स्ट ईयर में जो मैंने काम किया वो भी बहुत अच्छा लगा, लेकिन आपको पता होता है कि आपने कहाँ मिस्टेक्स किए हैं, आप कहाँ पे डरे हुए हो और आपको कहाँ डर लग रहा है. तो फर्स्ट ईयर में था. सेकंड ईयर में आई स्टार्ट गोइंग अवे एंड सेकंड ईयर आई बिकेम वेरी कॉन्फिडेंट एंड आई थॉट कि नाउ दिस इज इट, लाइक, यू नो, I can do it.
I can totally do this. Did you get a lot of support from friends या फिर वो दिल्ली वाले, since I am from Delhi, so I know that यार दोस्त full support में थे, यार तू तो मोए तू जा, तू full जा, तू तो चौदह फट्टे करेगा, या फिर they were like यार यही डाल ऐसे पीटेंगे, छोले भटूरे बनवाएंगे मस्त वाले. Everybody was in support, actually. Everyone was very, very happy. And my dad, who was like totally against of me going to Bombay, and he was also very supportive after, you know, I break through my first break and like I got the break. तो वो बहुत supportive थे और उनको बहुत अच्छा लगा था. He said नहीं नहीं बस अब तू उधर रह और just keep going, just keep doing it. He was very, very happy when I got my show, first show. मुझे अभी भी याद है कि you know my mom used to call me and say कि तू अच्छा कर रहा है. But you know आपके parents आपको हमेशा support करते हैं. आप थोड़ा भी अच्छा करो तो वो बोलते हैं कि हाँ अच्छा कर रहा है. They never should tell me कि खराब हो रहा है, कुछ हो रहा है, हमें अच्छा नहीं लग रहा है, या इसमें खराब है, उसमें खराब है. वो कभी मेरी खामियां बताते नहीं थे. But like when I used to improve, they used to tell me कि हाँ अब ज्यादा और अच्छा लग रहा है, अब और अच्छा लग रहा है, अब और अच्छा. तो वो मुझे ये जरूर बताते थे कि अब और अच्छा. तो मुझे समझ में आता था कि हाँ पहले से मैं बेटर हो रहा हूँ. तो वो जरूर था. फैमिली का फुल सपोर्ट था. Yeah, always they were always supportive. मुंबई का जीवन कैसा लगा जब दिल्ली वाला मुंबई में आया, और जब तो मुंबई कैसा? Initially तो बहुत struggle था because initially I didn't know anybody in Bombay. Nobody was there, and even my friend, like you know Kinshuk, we were friends like through one work which we did in Delhi in acting only. तो हम लोग बहुत ऐसे thick friends नहीं थे. We just know of each other. तो ज्यादा कोई मेरा फ्रेंड था नहीं, कोई जानता नहीं था. तो मैं ऐसे ही पैदल चलते चलते रास्ते पूरे करता था. कभी वड़ा पाव खा रहा होता था, कभी स्टेशन के बाहर जाके वहां पे जो उनका नींबू पानी है वो पी रहा था. मैं घर कभी नहीं जाता था बीच में, बिकॉज मुझे इतने सारे ऑडिशंस करने होते थे एक ही दिन में. कभी 5, 6, 7, 8 जितने भी ऑडिशन थे, आई यूज्ड टू मेक अ टारगेट कि मुझे सारे ऑडिशंस कंप्लीट करने ही है. मैं घर नहीं जाऊंगा आज जब तक ये ऑडिशंस पूरे नहीं होंगे. तो दैट्स हाउ यू शुड, बिकॉज मेरे पास टाइम लिमिट था. मेरे डैड ने मुझे टाइम लिमिट दिया था कि इतने टाइम में होगा तो होगा, नहीं तो वापस आ जाओ. ये नहीं है कि तुम सालों साल उधर रह रहे हो और करते ही जा रहे हो और तुम्हें पता नहीं है कि तुम कहाँ जा रहे हो, फिर भी तुम उधर लगे ही पड़े हो. तो मैं घर नहीं जाता था. और मुझे एक्चुअली वो टाइम भी बहुत मजा आया क्योंकि मैं अकेला था और अकेले रास्ते देखे, अकेले जगह ढूंढी. मुझे नहीं पता था उस टाइम पे कि फॉर एग्जांपल बालाजी का ऑफिस कहाँ है या कोई ऑफिस किधर है. कुछ मुझे अभी भी याद है कि मैं रिक्शा वालों से पूछता था कि सर आपको पता है बालाजी का ऑफिस किधर है, आपको पता है रामगोपाल वर्मा का ऑफिस किधर है, आपको इसका ऑफिस पता है, इसका ऑफिस पता है. तो मैं ऐसे रैंडमली चढ़ जाता था रिक्शा पे और पूछता था कि आपका ऑफिस बताओ किधर है, मुझे वहां जाना है और मुझे मिलना है. और मैं अपने पिक्चर्स लेके, या लाइक इट वाज वेरी स्टूपिड व्हेन आई थिंक नाउ कि मुझे कुछ पता ही नहीं था उस टाइम पे कि कैसे करना है. तो मुझे ऑडिशन का ए भी नहीं पता था कि कैसे देना है. मुझे बस इतना पता कि मैं बैकग्राउंड से करके आया हूँ, सीख कर आया हूँ. मेरे पास कुछ पिक्चर्स है जो मैंने फोलियो करवाया है और आ तो गया और मुझे पता नहीं कि जाना किधर है. तो आई हैड एब्सोल्युटली नो आइडिया हाउ टू गो अबाउट इट. तो धीरे धीरे करते करते मुझे समझ में आया जब व्हेन आई स्टार्टेड मीटिंग फ्यू पीपल ऑडिशंस में. एक्चुअली जब मैं एक ऑडिशन में पहुंचा तो वहां पे मैंने कुछ और लोगों से मिला, तो उनसे बात कर करके मुझे समझ में आया कि अच्छा ये ऐसे होता है, अच्छा वो ऐसे होता है, वहां जाना है, वहां जाना है, वहां जाना है. तो स्लोली आई फिगर्ड आउट कि ऑडिशंस हो का रहे हैं. बट इसका भी मजा होगा, वो टाइम याद करो तो बहुत. आई कीप टेलिंग समटाइम्स यू नो आई कीप डिस्कसिंग विद माय फ्रेंड्स और लाइक कि उस टाइम पे बहुत आई हैव रियली एंजॉयड दैट पीरियड आल्सो. मुझे बहुत मजा आता. रात को 2 बजे हम बॉम्बे में, बिकॉज बॉम्बे में ये है कल्चर कि यहाँ पे रिक्शा साइकिल वाले खड़े होते हैं रात को 2 बजे और वो तुमको बूस्ट पिलाते हैं, चाय पिलाते हैं, कॉफी पिलाते हैं. तो बहुत मजा आता था. हम सारे 3-4 फ्रेंड्स जो एक ही घर में रहते थे, हम नीचे उतरते थे रात को 1 बजे खाना खाने के बाद ऐसे यू नो वॉक के लिए. एंड देन वी यूज्ड टू हैव बूस्ट एंड ऑल दैट. वी यूज्ड टू टॉक एंड वॉक थ्रू द ओशन, बिकॉज हम लोग वर्सोवा में रहते थे, वहां पे सी था. हम लोग नीचे उतरते थे और वहां पे वॉक करना बहुत लाइक आई लव दैट पीरियड एंड रियली एंजॉयड दैट पीरियड. वो भी क्या दिन थे, मतलब वो भी क्या दिन थे, वो भी उसकी भी अपनी खास बात होती है. So, जब correct. Honestly, will you consider yourself extremely lucky क्योंकि 1.5 महीने में I do. मिले जब हम तुम क्रैक होना. क्रैक भी कोई ऐसा वैसा शो क्रैक नहीं हुआ. क्रैक हुआ एक शो जो लोगों को याद है आज भी. Absolutely. And in Absolutely.
ये जब मोमेंट आया था व्हेन यू ऑडिशन फॉर मिले, जब हम तुम, तो ऑडिशन से कोई उम्मीद थी, और जब ये न्यूज आई सामने, तो व्हाट वाज योर रिएक्शन, व्हाट डिड यू डू दैट डे एंड हाउ वाज दैट नाइट? जब मैंने पहली बार ऑडिशन दिया तो मुझे तो एक्चुअली शो का मैं कुछ जब मेरा फाइनल हुआ उससे 7 महीने पहले मैं ये ऑडिशन दे के जा चुका था। जब मैंने आपको बताया कि मैं कभी कभार आता था बॉम्बे कुछ 5-6 दिन के लिए, तो मैंने एक ऑडिशन दिया था उस टाइम पे। किसी ने मुझे बुलाया, मैंने ऑडिशन दिया, बट मैं वो ऑडिशन दे के वापस जा चुका था दिल्ली। और जब फाइनली बॉम्बे आया वो 3 साल बाद, जब मेरे डैड ने मुझे बोला ओके फाइनली यू गो फॉर 6 months, देन अगेन आई केम हियर, अगेन आई मेट समबडी बीच रास्ते में, स्ट्रीट के बीच में जो पटरी होती है वहां पे मैं उससे मिला डिवाइडर पे, और उन्होंने बोला कि आप क्या कर रहे हो, एंड एक्चुअली आई वाज figuring out about my house, you know, where I could stay, because जहाँ पे मैं रह रहा था किंशुक महाजन के साथ में, वहाँ I couldn't live for longer time because I had to figure out my own place. तो I met this guy who was about to help me for a house and all. So he said आप कर क्या रहे हो, आप घर तो ढूंढ रहे हो, आप करते क्या हो? तो मैंने बोला कि मुझे एक्टिंग करना है और मैं फिगर आउट कर रहा हूँ और मुझे ऑडिशन देना है। तो he said आप एक काम करो, आप कल आ जाओ इस एड्रेस पे ऑडिशन देने के लिए। He was a casting director actually. जो मुझे मिला बीच में, एंड ही सेड कि आप आओ। तो मैंने ऑडिशन दिया वहां पे, और मुझे समझ में आया कि ये लाइंस मैं कुछ कर चुका हूँ कुछ पहले ऑडिशन, लेकिन फिर भी मैंने उनको बोला कि मैं ऐसा कुछ कर चुका हूँ सर, तो मैं दोबारा करूँ क्या? ही सेड या आप एक बार और कर लो, वो कितना टाइम आपने 7 महीने पहले किया था, आप एक बार और कर लीजिए। तो मैंने जब दोबारा किया तब मैं फाइनल हुआ उस शो के लिए। एंड व्हेन दे कॉल्ड मी, या when they finally called me कि आप ये शो कर रहे हो, तो मतलब I was on like you know another level. I called my mom, dad कि मुझे शो मिल गया है, and when I went to the office and they said कि सर ये आपका कॉन्ट्रैक्ट है, आप साइन कर लीजिए और पढ़ लीजिए। तो मैंने बोला सर मुझे नहीं पढ़ना है, मुझे एक वर्ड नहीं पढ़ना है, मुझे बस इतना पता होना चाहिए कि मैं ये शो कर रहा हूँ, और मुझे बताओ साइन कितने करना है, मैं साइन कर रहा हूँ, आपकी टर्म्स कंडीशंस जो भी है मुझे नहीं पता, मैं बस ये कर रहा हूँ। Wow, So I didn't even read a page of it, and I just signed it, like without reading it. I was so happy. Oh wow, this is like कहते हैं ना डेस्टिनी जब जोर लगा देती है तो फिर कुछ है ही नहीं, फिर तो उसके बाद Yeah. you will get what you have to get. That's how it is. So, Yeah, I want to share one thing which not a lot of people know, because I've never shared this with anyone, this piece of Please go ahead. information. When I was in Delhi, जो मेरे 3 साल की जो बीच में स्ट्रगल थी, उस टाइम पे मैंने एक लेडी थी जो जहाँ पे मैं गया पहली बार, और मैंने बोला कि मुझे करना है। जब मैं बैरिजन कर रहा था उस टाइम पे मैंने किससे मिला, और उन्होंने बोला कि आप ऑडिशन दे दीजिए आके, और हमें आपको एक फिल्म में कास्ट करना है। तो मैंने बोला कि अरे वाह, ये तो पहले छूटते ही मतलब शुरू होते ही फिल्म का कास्टिंग शुरू हो गया है, और मैं जरूर आऊंगा आपसे मिलने के लिए। तो मैं गया उनसे मिलने के लिए, एंड शी सेड अच्छा मुझे ऑडिशन भी नहीं चाहिए, मैंने आपको देख लिया, बस आप भी मेरी पिक्चर कर रहे हैं। तो मैंने बोला कर रहे हैं मतलब कौन है इस पिक्चर में? सो ही सेड कि इस फिल्म में ऋतिक रोशन है और प्रीति जिंटा है, और आप फिर ये फिल्म कर रहे हैं। तो मैंने बोला इट्स अनबिलीवेबल, लाइक आई एम जस्ट टॉकिंग टू यू एंड लाइक रैंडमली आई हैव कम एंड सडनली यू हैव गिवन मी अ फिल्म, यू आर सेइंग कि आप कर रहे हो। तो ये तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था इस बात पे, लेकिन मैं घर फिर भी गया और मैंने बोला कि अरे मुझे मिल गया, बिकॉज आपको जो भी चीज पता लग रही है आप तो वो शेयर करोगे अपने मॉम डैड के साथ में। एंड आई सेड कि आई एम डूइंग अ फिल्म बिकॉज आई हैव गॉट अ फिल्म, एंड शी सेड आप कर रहे हो। और वो एक्चुअली कुछ नहीं था, वो जब मैं सेट के गया उस फिल्म के पहली बार, तो उन्होंने बोला आपको एक काम कीजिए, वो ऋतिक रोशन चल रहे हैं, वो प्रीति जिंटा चल रहे हैं, आपको उनके पीछे से निकलना है। तो मैंने बोला ओके, तो मैं निकल रहा था, मैं पासिंग दे रहा था, एंड स्लोली जब वो दिन पूरा निकलता गया तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, और इसमें कुछ लाइन नहीं, कुछ डायलॉग नहीं है, और मैं सिर्फ पीछे से निकल रहा हूँ। तो मैंने बोला कि मैम ये क्या है, आपने मुझे इसके लिए बुलाया है, तो मेरा डायलॉग किधर है? तो शी सेड आएगा, आपका डायलॉग आएगा। तो पूरे दिन डायलॉग नहीं आया। उन्होंने फिर मुझे एक और दिन बुलाया, जब उन्होंने बोला कि आपको दोबारा आना है, अब आपका डायलॉग पक्का आएगा। तो मैंने बोला ओके ठीक है मैं आता हूँ, बट मेक श्योर मेरा डायलॉग हो उसमें। तो शी सेड या आप आइए। तो मैं गया, फिर मुझे उन्होंने बोला कि आप इसके पीछे से निकल जाइए, और गाना चल रहा था वहां पे। मुझे अभी भी याद है कि वहां पे वो गाना चल रहा था, अगर मैं कहूँ मुझे तुमसे मोहब्बत है मेरी, तो ये गाना चल रहा था हुमायूं टॉम में दिल्ली में, और मैं फिर से पीछे से निकल रहा हूँ।
तो मैंने बोला दिस इज रियली नॉट डन, लाइक ये क्या हो रहा है। और मुझे उस टाइम पता नहीं था कि कैसे कास्टिंग होती है, और मे बी यहाँ इसी के थ्रू मुझे आगे कुछ और मिलेगा। तो आई वॉज ऑल्सो बिलीविंग इन दैट ऑल्सो, मतलब मुझे लगा था कि शायद इससे भी मुझे कुछ और काम मिलने वाला है। तो मैं वो भी करना शुरू कर दिया। आई वॉज नॉट सेइंग नो टू इट, लाइक आई वाज जस्ट डूइंग इट, बट आई केप्ट आस्किंग हर कि मेरा डायलॉग कब आएगा, मेरा डायलॉग कब आएगा, मेरा डायलॉग कब आएगा। ऐसे करते करते मैंने 1 नहीं 2 नहीं 3 प्रोजेक्ट्स में काम किया, जहां पे मैंने सोचा कि शायद मेरा डायलॉग आएगा, शायद मेरा डायलॉग आएगा। बट इवेंचुअली मैं जूनियर आर्टिस्ट का काम कर रहा था बेसिकली, एंड फुल रिस्पेक्ट टू देम, लाइक हाउ मच दे हैव टू वॉक एंड डू ऑल दैट एंड ऑल दैट, बट स्टिल लाइक मुझे जो करना था वो मुझे करने का मौका नहीं मिल रहा था, और मुझे कोई गलत गाइड कर रहा था, और मुझे कोई बोल रहा था कि आपका डायलॉग आएगा, आपका सीन आएगा प्रॉपर। एंड इवेंचुअली मैंने फिगर आउट किया कि कोई मुझे गलत गाइड कर रहा है, और मैं कुछ नहीं, मैं सिर्फ पासिंग दे रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। एंड आई लेफ्ट इट, एंड सिंस देन लाइक आई डिडंट गो टू हर एंड सेड कि मुझे काम करना है आपके साथ में। बिल्कुल नहीं, So, ऐसी भी चीजें सो मैं वो टाइम सोचता हूँ कि मतलब इट वाज अ वेरी फनी टाइम, लाइक बहुत अजीब चीजें होती है। कुछ लोग आपको गलत गाइड करते हैं, कुछ लोग आपको सही गाइड करते हैं, लेकिन आपको अपना रास्ता खुद बनाना होता है आई गेस, और वो बन जाता है, और डेस्टिनी आपको ले जाती है उस तरफ। बिल्कुल, एंड जस्ट सी फ्रॉम दैट इंसिडेंट टू हियर व्हेन यू लैंड अप इन मुंबई, you meet that guy on a divider and the same role you auditioned 3 years ago and comes back to you. This is just amazing. Totally a big touch. This is unbelievable. Really, really unbelievably amazing. So basically, totally. basically Mumbai has been very kind to you that way. Mumbai has been very, very kind to me. Yes, it's my second home. So yeah, I'm very, very grateful that I've got some work in Bombay, and I could break through this and got some work in acting. What did you give the typical Delhi wala reaction? कि अरे यहाँ तो balconies नहीं है, कपड़े कहाँ सुखाएंगे? बट जब मैं अपने 4 दोस्तों के साथ रह रहा था, तब तो मैं ज्यादा कुछ डिमांड नहीं कर सकता था। ऑब्वियसली जो आपको मिल रहा है उसमें आपको रहना है, और चुप करके रहना है, ज्यादा डिमांड नहीं करनी है, बिकॉज ऑब्वियसली तब रेंट्स इतने होते थे, और आपका एक्सपेंडिचर होता है, आपको सब कुछ निकालना है। आपने अभी अभी काम शुरू किया है, तो तब ज्यादा डिमांड्स नहीं थी। जब मैंने अपना घर लिया सेपरेटली, when we all got our own houses and started living on our own, तो तब मेरा था कि मुझे बैल्कनी चाहिए यार, बिकॉज मैं दिल्ली से था, एंड दिल्ली में तो आपके घर में अगर बैल्कनी नहीं है तो आप नहीं रह सकते हो, बिकॉज यू नीड दैट ब्रीदिंग स्पेस एंड ओपन स्पेस। तो मैंने बोला जो भी मुझे घर दिखा थे, मैंने बोला प्लीज यार मुझे बैल्कनी के बिना तो घर दिखाना ही मत, मैं नहीं रह पाऊंगा, मेरे को ब्रीदिंग स्पेस चाहिए। That is still there in me. That is like even till now also, like I need my house where I have some breathing space. I keep going to my balconies and keep sitting over there, keep having my chai sessions and all that. So वो तो बहुत important है। Balcony के बिना तो out of question है। Definitely चलता ही नहीं है। बहुत सारे शोज किए हैं, मिले जब हम तुम तो ऑब्वियसली पहला हिट एवरीथिंग इज फाइन, उसके बाद और भी बहुत सारी चीजें स्टार्ट हो जाती हैं। So which one show apart from Mile Jab Hum Tum, which other show you think has completely changed your life and got you there where you always wanted to? There's always more to go, वो तो अलग चीज है, but still. And why did you take a 3 मतलब एक break था, break के बाद now Nagin 5 happened. So what was this entire thing? So basically, if you ask me, like the show which made me like what I am today is I would say Mile Jab Hum Tum only, because that was the first show and got so popular. My character got so popular. People started loving me, and it went for 2.5 years. So everyone, like in the show, whoever was there, like even Arjun, Sanaya, Rati, whoever was there, got so popular from that show. So all credits to Mile Jab Hum Tum also. But जहाँ पे मुझे लगा कि मैं अब एक्टिंग में एक और स्टेज पार कर रहा हूँ, जो मुझे लगा वो मुझे लगा कि मैंने सरोजनी में किया शायद, because it was a completely different character altogether. And initially जब मैं उसके ऑडिशन के लिए जा रहा था सरोजनी के लिए, तो तब मैंने सोचा कि शायद ये मैं कर नहीं पाऊंगा, ये बहुत डिफिकल्ट है, मुझे वो एक्शन नहीं आता है, because I had to play a बिहारी guy in that, और मुझे वो एक्शन पकड़ना था, थोड़ा बिहार का लहजा पकड़ना था। तो I kept telling them कि कैसे होगा, and they said कि just go for it, and like just at least attempt it, and then if it doesn't happen, it's okay, just try and do it. तो मैंने पहली बार किया तो थोड़ा ठीक ठाक हुआ,
and I told them please call me another day. I want to do this another day, but I want to just get prepared with this accent and I want to watch few some content and मुझे थोड़ा सीखना है इस बारे में और मैं दोबारा आके करूंगा. जब मैं दोबारा आके किया तो they were very very happy. They said जमीन आसमान का फर्क है और आपने बहुत improve किया है, तो I think you will be able to do it. It's just time period. You just need time to adapt this. और थैंकफुली हमारे शो में काफी लोग थे बिहार से जिनके साथ मैं बातें करता था रोज, उस लैंग्वेज में. उनको मैं बोलता था कि आप मुझसे हिंदी इंग्लिश में बात मत कीजिए, आप मुझसे सिर्फ बिहारी लैंग्वेज में ही बात कीजिए, एक्सेंट में बात कीजिए, ताकि मैं वो सीखूं. और ऊपर से पंकज त्रिपाठी उस शो में थे, जिनके साथ काम करके मुझे बहुत 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 मजा आया. मैंने बहुत कुछ सीखा उनसे एंड आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला. तो बहुत मजा आया उस शो में मुझे, और मुझे उस शो में लगा कि हाँ ये एक स्टेज मैंने और क्लियर किया है जहाँ पे मैं एक अनदर स्टेज पे शायद पहुंचा हूँ और मैं कर सकता हूँ अभी ये भी. नागिन 5 कैसा चल रहा है? नागिन में बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत मजा आ रहा है. हमारा बहुत अच्छा बॉन्डिंग बन गया है, शरद मेरा, सुरभि का. वी कीप क्रैकिंग जोक्स, बहुत मजा आता है काम करने में. एंड इवन आवर डायरेक्टर, एवरीवन इज वेरी वेरी स्वीट. तो बहुत मजा आता है शो में काम करने में, बहुत मजा आ रहा है. Yeah, I had a long chat with Surbhi also for the TRP show. She was also telling the same thing that it's a lot of action and it's a lot of dhamal, wearing harness and like tired. Yeah, totally. Like आपको जैसे कुछ शोज तो होते हैं जहाँ पे सास बहू ड्रामा होता है, रोमांस होता है, वो भी बहुत मजा आता है आपके बारे में. लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, थोड़ा थ्रिल है, थोड़ा रोमांस है, थोड़ा एक्शन है, सब कुछ है. मतलब तो आप सब जितना भी आपके अंदर है सब निकाल सकते हो आप. Mohit, you have had a journey. दिल्ली से यहाँ, doing your things. The guy जो कि स्टेज पे नहीं करता था, पर अंदर की फीलिंग थी. Barry Jones you did, then you came to Mumbai. Yeah. Your destiny was also in place, but you have had your struggles also. Yeah. And some reality checks to all those people जो वैसे ही थोड़ा सा सपना देखते हैं जैसे कभी at some point of time मोहित सहगल ने देखा था. To somewhere be like you or be in a zone where you are. And there are many. Right. What do you want to tell them? Some reality checks. I want to give a reality check that if you are passionate about it, guys, then just go for it. Then just don't think about it. Do not look back and just keep doing the hard work and you will get it. Like, you should know where you're standing. ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ हासिल करना है लेकिन आपके अंदर अगर टैलेंट नहीं है. अब मैंने ये चीज सीख लिया, इंडस्ट्री में टैलेंट काम करता है और कुछ काम नहीं करता है. आप टैलेंटेड हो तो आप आगे बढ़ोगे ही बढ़ोगे, आपको कोई नहीं रोक सकता. एंड अगर टैलेंट पे आप वर्क नहीं कर रहे हो तो उसका कोई फायदा नहीं है. आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और इट्स नॉट गोना हैपन लाइक दैट. इट्स नॉट इजी गाइस, बट इट्स नॉट दैट यू कांट ब्रेक थ्रू. ऑल्सो आप कर सकते हो अगर आप पैशनेट हो, टैलेंटेड हो तो आप डेफिनेटली कर सकते हो. Super. Thank you so much, Mohit, for sharing. Thank you. I'm sure this is going to motivate a lot of people. Looking forward to this conversation. I hope so. Completely. Thank you so much for having me and doing this interview and chatting with me. So I love the conversation. Had a great fun doing this. Thank you. Thank you, Mohit. Chakde Fatte, keep rolling, keep rocking. Lots of love. Yes, Chakde Fatte. Lots of love to you too. Yes, love you. Take care. So guys, that was आपका अपना Mohit. Loved, you're adored, and now you know his journey a little more than ever. Okay, so make sure that you're going to hear this podcast.